आपको जयपुर लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों के साथ संवाद करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलने वाला है। वेलकम सर। And now I would request the distinguished guests to please come up on the dais. Mr. Devendra Singh Shekhawat, Chairman, Pratap Group. Mr. Mahavir Pratap Sharma, Co-founder and Chairman, Rajasthan Angels. Mr. N.K. Jain, Chairman, MSME Committee, Rajasthan and President, the Employers Association of Rajasthan. Shri Rajneesh Bhandari, Adhyaksh, CII Rajasthan or MD, Neuro Equilibrium Diagnostic Systems Private Limited. Shri K.L. Jain, Adhyaksh, Rajasthan Chamber of Commerce and Industry. Shri Manish Gupta, Adhyaksh, Insulation Energy. Shri Omkar Bagadia, CEO, Vivekanand Global University. Shrimati Anju Singh, Rashtriya Mahasachiv, Laghu Udyog Bharati. Shri Raghavendra Kumar Singh, Pramukh Sachiv, Audyogik Niti एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग. Shri Chandramouli Shukla, Prabandh Sanchalak, MP IDC. Welcome, gentlemen. I would request Mr. Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, to please felicitate. सबसे पहले हम उनसे निवेदन करेंगे. देवियों और सज्जनों, भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रकाश से करना एक पवित्र परंपरा रही है। यह दीप केवल एक ज्योति नहीं, बल्कि ज्ञान, आशा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर नई दिशा दिखाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस सत्र का शुभारंभ करें। जेंटलमैन, इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज लेफ्ट या राइट से पिक्चर्स क्लिक कर लें। पीछे किसी को भी कुछ नहीं नजर आ रहा है एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सेशन टू। Ladies and gentlemen, they say the future belongs to those who invest in possibilities. And today, we gather in the heart of Rajasthan, Jaipur, to explore the possibilities of strategic investment in the heart of India, Madhya Pradesh. Not only geographically, but for the plethora of opportunities it delivers. नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पल्लू बरॉय मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। The interactive session on investment opportunities in Madhya Pradesh stands open now. दोस्तों, आज का यह आयोजन केवल एक सत्र नहीं है, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच औद्योगिक साझेदारी को नई गति देने का अवसर है। I would request Mr. Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, to please welcome Honorable CM Sir and all the dignitaries available on the stage.
Thank you so much, sir. Welcome to all the dignitaries sitting on the dais. Now I request Mr. Rajneesh Bhandari, Managing Director, MD, Neuro Equilibrium Diagnostic Systems Private Limited, to please join us on the stage to deliver the welcome address. Good afternoon. Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh, Mr. Raghvendra Kumar Singh, Principal Secretary, DIPIP and MSME, Mr. Chandramouli Shukla, Managing Director, MPIDC, distinguished guests and dignitaries on the dais, industry leaders, fellow members of CII, ladies and gentlemen. On behalf of the Confederation of Indian Industry, it is my privilege to extend a warm welcome to all of you to Jaipur, the Pink City of India. A city known not just for its heritage and hospitality, but also for its entrepreneurial energy and industrial dynamism. From gems and jewelry to manufacturing, from tourism to minerals, Jaipur represents the spirit of a progressive and resilient Rajasthan. Today's session is particularly special because it brings together two neighboring states that share not just geography, but ambition. Rajasthan and Madhya Pradesh have always enjoyed a healthy partnership, and if I may add, a bit of friendly competition as well, whether it is attracting investments, building infrastructure, or improving the ease of doing business. And I must say, this kind of competition is good for all of us. It pushes us to raise our game and move faster. Both Rajasthan and Madhya Pradesh are endowed with strong industrial ecosystems, abundant land availability, well-planned industrial zones, sector-specific parks, and a clear commitment to facilitating industrial growth. The Delhi-Mumbai Industrial Corridor, DMIC, is a game changer for both states. While Rajasthan has been an early beneficiary, it is equally exciting to see Madhya Pradesh leveraging this opportunity to enhance connectivity, create new industrial hubs, and integrate seamlessly with national and global markets. We are deeply grateful to Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, for being with us today and for inviting us to this important interaction with the industry. Today's session offers an excellent platform to explore opportunities across key sectors from textiles, renewable energy, food processing, logistics, pharmaceuticals, and manufacturing. More importantly, it allows us to engage in a meaningful dialogue, because investment decisions are not driven purely by policy, but by trust, clarity, and partnership. At CII, we strongly believe in collaborative growth. CII has been working closely with the government of Madhya Pradesh, and we remain committed to strengthening this engagement, translating discussions like today into actionable outcome and real investments. I am confident that this interaction will not just remain a dialogue, but will lead to concrete partnerships between the vibrant industries of Rajasthan that all of you represent and the rapidly transforming economy of Madhya Pradesh. Let me once again extend a warm welcome to the Honorable Chief Minister and all the distinguished participants. Thank you. Thank you so much, sir. And now moving forward, जैसा कि हम सभी देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह निवेश एक सशक्त और उभरता हुआ केंद्र बनता जा रहा है। अब समय है उन अनगिनत अवसरों को और करीब से समझने का जो इस राज्य को निवेशकों की पहली पसंद बना रहे हैं। आइए एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से जानते हैं मध्य प्रदेश में संभावनाओं की नई दिशा। If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River,
if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET, and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 8 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. That was indeed an eye-opening AV. और अब हम जानते हैं कि किस तरह और इन्वेस्टमेंट के नए आयाम आप सभी के लिए खुलने वाले हैं. Ladies and gentlemen, 2 साथ में जो राज्य होते हैं उनके साथ सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक ऑलरेडी आज हम देख रहे हैं. माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश सरकार के साथ में हमारे साथ यहाँ पर हैं श्री कृष्णलाल चौधरी, मंत्री महोदय जल संसाधन राजस्थान सरकार. एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी हार्दिक अभिनंदन. And now to take you all forward, I would like to invite on stage Mr. Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, for a detailed presentation on the investment landscape and sectoral opportunities in Madhya Pradesh. वंदे मातरम. नमस्ते जयपुर. अनंत संभावनाओं से भरे हुए मध्य प्रदेश और उसमें अपने अथक प्रयासों से अहर्निश उन्हें साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जी, श्री देवेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री महावीर प्रताप शर्मा जी, श्री NK जैन साहब, श्री रजनीश भंडारी जी, श्री KL जैन जी, श्री मनीष गुप्ता जी, श्री ओंकार बागरिया जी, श्रीमती अंजू सिंह जी और यहाँ पर सभागार में उपस्थित सभी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. आज के इस कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पर पधारे हैं और मैं मध्य प्रदेश की बात यहाँ पे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ. मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के नज़रिए से अगर देखें तो अपार संभावनाएं यहाँ पे हैं और सबसे पहला जो फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा कि इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के नज़रिए से ये विभाग औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन का विभाग
स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उस विभाग के भार साधक मंत्री हैं, तो किस तरह से ये चीज़ें उनकी प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे हैं, ये आपके समक्ष मैं इसको रखना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में देखें तो स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, एकदम भारत के हृदय प्रदेश के रूप में स्थापित है, और यहाँ पे देखें तो करीब 50% जो इंडिया का कंज्यूमर मार्केट है, इसकी सेंट्रल लोकेशन की वजह से बहुत, जैसे एक कहते हैं कि नज़दीक के रेडियस में है, 500 किलोमीटर का अगर एक रेडियस लें तो उसमें आ जाएगा। एबंडेंस स्किल मैन पावर है, और वो भी लो कॉस्ट पे, ज़ीरो मैन डेज लॉस हैं, कभी कोई लेबर ओरिएंटेड लेबर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रही। लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं डायमंड, कॉपर, मैग्नीज में, फूड फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भारत में दूसरे स्थान पे, हॉर्टिकल्चरल और जो हमारी डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी हाई रैंकिंग वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। पावर सरप्लस स्टेट है, 31 गीगावाट की हमारी पावर सप्लाई है, और रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन करीब 1/5 है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उद्घोष है कि हम 2030 तक करीब 550 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ले आएँ, तो मध्य प्रदेश भी इसमें अपनी एक बड़ी भूमिका, राजस्थान की ही तरह से मुझे पता है कि राजस्थान ने काफ़ी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में प्रयास किया है। मध्य प्रदेश भी एक बड़ा योगदान देगा, और अगले 4 से 5 वर्ष में हमारा जो एनर्जी बुके होगा उसका 50% के करीब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ले पाएंगे। एबंडेंस ऑफ वाटर सप्लाई है, मोर देन 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर हमारे पास बहुत ही कम रेट पे उपलब्ध है। रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, 8 हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और 1 लाख से एकड़ से ऊपर इंडस्ट्रियल लैंड हमारे पास उपलब्ध है। मध्य प्रदेश की नीतियों की चर्चा करें तो पिछले वर्ष 25 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 18 नई नीतियां समर्पित की गई थी, और इन 18 नीतियों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए थी। मैं इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी की जो नीति है उसके बारे में मैं अगर बताऊं तो हम कैपिटल सब्सिडी 40% तक देते हैं, और विशेष तौर पे इसमें जो फार्मूला हमारा है, एमएसएमई यूनिट को सपोर्ट ज़्यादा बड़ा है, और वो धीरे धीरे उसको एक करों के माध्यम से हम कम करते हैं, पर 40% तक का सपोर्ट है। अगर 83 करोड़ तक का भी अगर निवेश करते हैं तो आपको 40% का सपोर्ट मिलेगा। कैपिटल सब्सिडी के ऊपर हम एम्प्लॉयमेंट का मल्टीपल देते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है तो 1.5 तक आपको मल्टीपल मिल सकता है। एक्सपोर्ट का मल्टीपल है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं तो आपको 1.3 तक का मल्टीपल मिल सकता है। अगर हमारी नॉन इंडस्ट्रियलाइज या लेस इंडस्ट्रियलाइज एरिया में अगर आप काम करेंगे तो 1.3 तक का मल्टीपल वहाँ भी उपलब्ध है। और एफडीआई का भी मल्टीपल है, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लेके आ रहे हैं तो 1.2 तक का मल्टीपल मिल सकता है। और ये मल्टीप्लिकेशंस एक से दूसरे का सब कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन है, तो काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट हम इस हिसाब से देते हैं। 50% तक आपका जो एक्सपेंडिचर है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उसे सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट फ्रेट की सब्सिडी 50% तक है, जो 5 वर्षों में 2 करोड़ तक हो सकती है, और 25% जो आपका एक्सपेंडिचर है उस R&D फैसिलिटी पे उसको सपोर्ट करते हैं। स्टैंड एलोन अगर यूनिट्स हैं तो उनको 25% का सपोर्ट 25 करोड़ तक का हम दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल हाउसिंग में वायबिलिटी गैप फंडिंग 40% तक का है। इनके अलावा 10 जो सेलेक्ट सेक्टर्स हैं उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उन पे एडिशनल इंसेंटिव्स हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी कस्टमाइज पैकेज भी मेगा इंडस्ट्रीज़ को उनके मार्गदर्शन में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति है जो इस पे विचार करती है, और उसमें एक कस्टमाइज पैकेजेस भी इंडस्ट्रीज़ को दिए जाते हैं। एक बड़ा विषय इसमें जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया लेके आ रहे हैं तो आपके 50% जो फिक्स कैपिटल एक्सपेंसेस हैं उसका सपोर्ट हम देते हैं। 100% स्टैम्प ड्यूटी का वेवर है, और 50% ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपोर्ट है। तो आप अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया हो या मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के एरिया हो, कहीं भी आप जाएंगे आपको एक ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स को हम लोगों ने जहाँ पे संभावनाएं हमारे यहाँ अपार हैं,
जैसा मैंने बताया कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, हार्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में तीसरे नंबर पे। तो उसकी वजह से एग्री, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग के लिए एक अलग से हमारी स्कीम है जिसके तहत 1.5 का मल्टीपल है। अगर बाकी सेक्टर्स के लिए 40 रुपये का अगर सपोर्ट हमारे पास है, तो अगर आप इन सेक्टर्स में हैं तो आपको 60 रुपये का सपोर्ट है अगर आपका प्रोजेक्ट जिस तरह से काम करेंगे। मंडी फी की रीइंबर्समेंट है, पावर टैरिफ का सपोर्ट है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन का सपोर्ट है। टेक्सटाइल सेक्टर में जो हमने आपको पिछली स्लाइड करें। जय श्री महाकाल। आज के इस बहुत अच्छे उत्साह और ऊर्जा भरे माहौल में मध्य प्रदेश के रोड शो के इस आयोजन में माननीय मंत्री श्रीमान कन्हैयालाल चौधरी साहब, जल संसाधन मंत्री, इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय देवेंद्र सिंह शेखावत जी, आपका अभिनंदन है। माननीय महायुक्ता शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय NK जैन साहब, अध्यक्ष MSME, माननीय रजनीश भंडारी जी, ओपनिंग बैट्समैन धोनी से कम नहीं है, अच्छे ढंग से आपने बात रखी। माननीय जैन साहब अभी आ रहे हैं वापस, लेकिन ऐसा लग रहा है जैन साहब 93 में ये कमाल कर रहे हैं, तो इनका उनकी कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस, विषय को समेटने के तरीके, स्मरण शक्ति परमात्मा करे शतायु हो और सहस्त्रायु हो। इस अवसर पर माननीय मनीष गुप्ता जी, आप तो सोलर पावर, खास करके मां नर्मदा के आशीर्वाद से आपकी इंडस्ट्री पहली नहीं, ये शुरुआत है, ये भी 100 में जाके पूरी हो, ये मैं शुभकामना देता हूँ। माननीय ओंकार बागरिया जी, इस अवसर पर श्रीमती अंजू सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमौली जी और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। राजस्थान में और मध्य प्रदेश के बीच, हमारे बीच ऐसे सबसे अच्छा संबंध माना जाता रोटी बेटी का संबंध, रोटी पानी का संबंध। तो दाल बाटी तो साथ में होती थी, और पानी का और आनंद आ गया पार्वती काली सिंह चंबल के साथ, तो संबंध पक्का ही हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में राजस्थान और मध्य प्रदेश तो जुड़वा भाई की तरह है, ये परमात्मा की कृपा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, उनका ताली बजा करके स्मरण करें। नवरात्रि का समय चल रहा है, नया संवत विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर का प्रादुर्भाव हुआ है, और प्रकृति भी रंग बदलती हमारे ऋतुओं के मौसम के साथ, हमारे वर्ष के साथ दुनिया के कई सारे देशों में कमोबेश हमारे 1 महीने के आगे पीछे, चीन से लगा ताइवान तक, वियतनाम से लेके जापान तक, भारत का तो हर एक, कभी चेटी चंड, कभी नवतेरा, कभी गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत, हमारे सब नाना प्रकार के नामों के साथ नए साल की शुरुआत भी होती। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है और कई नए प्रकार के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, ये केवल मोदी जी का शासनकाल का चमत्कार हो सकता है कि लोकतंत्र के अंदर 2 राज्यों के आपस के संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने और भारत सरकार आशीर्वाद दे, ये मोदी जी के माध्यम से हो सकता है। जोरदार ताली बजा करके इस भाव को भी लाए। पहले राज्यों से राज्यों के बीच उनके संसाधनों के बंटवारे को लेकर के जिस प्रकार का अपने दक्षिण के रिकॉर्ड चल रहे हैं, कई लोगों की हत्याएं हो गई, मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या है। जब हमारी सरकार बनी, माननीय भजन लाल जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनका भी अभिनंदन कर दो, केरल से आए, मेरी बात हो गई थी, वो आ रहा है शाम तक, और उनने माननीय चौधरी जी को मेरे साथ इस बात के लिए रखा है कि हमारा अपना राज्य का जो परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध है, सच में हम इस भाव से ही बैठे हैं
कि आप राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें, क्योंकि आखिरकार ये अलग बात है, मैं बोल सकता हूँ आपके बीच में, हमारे राजस्थान के लोग तो पूरे देश के हर जगह व्यापार व्यवसाय के झंडे गाड़ने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ क्या, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपको मौका मिले तो क्षमता योग्यता से कोई कम नहीं पड़ता, ये तो पक्की बात है। हमारे अपने ये नैसर्गिक गुण भी है, ईश्वर की मेहरबानी, कठिनाइयों में से भी रास्ता निकालना, क्षमता, बुद्धि, योग्यता, ये बात तो सही है कि धन कमाने के लिए धन चाहिए, लेकिन धन तो बैंक में पड़ा है, वास्तव में तो मन चाहिए और दिमाग चाहिए, और वो कम नहीं है, ये पक्की बात है। वो सारी कृपा परमात्मा ने किसी राज्य को जितनी दी होगी उतनी दी होगी, लेकिन सबसे सवाया अगर ज्यादा मौका दिया तो राजस्थान को दिया, ये पक्की बात है। इसलिए राजस्थान का आप गिनती करना चौधरी जी या जैन साहब, थोड़ा कम कर देना, मैं तो गिनती भूल चुका हूँ कि कितनी बार आया हूँ, लेकिन जब भी आऊँगा परमात्मा की दया से इसी प्रकार से राजस्थान मध्य प्रदेश के संबंध बनाने के लिए आएंगे। हमारे लिए और कई कारण से चुनौती भी के साथ एक अवसर भी है, और अवसर इस नाते से भी है कि आज के इस वैश्विक दृश्य में देखें, हमको सब दिखाई देगा, हमारे सामने कुछ घटनाओं का स्मरण करें, कुछ और पहले चले जाएं, कोविड काल जाएं, उसके पहले के जाएं, कहाँ भारत का नंबर कौन से अंक में कहाँ आता था वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से, 2014 के पहले का भारत, और आज भारत किस स्थिति में खड़ा है। लेकिन भारत आज उसके अलावा भी कई प्रकार की चुनौतियों के बीच भी अवसर के रूप में भी पा रहा है। अभी हम साल 6 महीने 2 साल पहले अपने यहाँ के निवेशकों को खाड़ी की तरफ भागते देख रहे थे, और खाड़ी में खड्डा कैसे हुआ ये भी हमारे सामने दिख रहा है। अपने सामने जो माहौल बना है, मैं किसी पे टिप्पणी करूँगा, ये रास्ते में जिस जगह हूँ उस जगह की दृष्टि से थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है, और ये मैं मान के चलता हूँ कि केवल समझने की आवश्यकता है, लेकिन इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि आज जीने की कला, जीने की दृष्टि, धन की उपलब्धता, धन को समाज और संसार में किस प्रकार से लेकर के उपयोग और उपभोग करने की आवश्यकता है। ये जो मनस्विता चाहिए, ये जो मानवीय गुण, लेकिन धन से उनके यहाँ पराभव हो रहा है कि उद्भव हो रहा है, इसको बोलने की और बताने की जरूरत नहीं, लेकिन धन के माध्यम से भी हिम्मत के बलबूते पर देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अनथक प्रयत्न कर रहे हैं, और मोदी जी के आशीर्वाद से अब आप बताओ, 2 राज्य पीकेसी योजना केवल राजस्थान का उल्लेख कर दे, सब मिलाकर 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही, और 1 लाख करोड़ की योजना में केवल हमारा दोनों राज्य का तो 10% लगना, और बाकी सारा पैसा भारत सरकार देगी। ये कैसा आश्चर्य हो सकता है। और भारत सरकार बगैर संकोच के, मोदी जी स्वयं आकर के इस बात को अनाउंस करते हैं, और ऐसे एक नहीं सब क्षेत्रों में, जीएसटी कलेक्शन से लेकर अभी आपने बिजनेस के सरलीकरण की बात की, सच में जीएसटी जब लगाया था तो हमको लगता है भारत में जीएसटी कैसे लग जाएगा, लेकिन फिर भूल गए कि मोदी जी सरकार चला रहा है, ये जो करे सब संभव है, इनके शासनकाल में हो सकता है। कितने प्रकार से काम होगा। अपने देश के दुश्मनों से जाके निपटने के लिए दूसरे देश की सीमा में अंदर जाकर के, क्योंकि जब आप व्यापार व्यवसाय अनुकूलता की बात करोगे तो हमारे लिए सामर्थ्यवान होना भी उतना ही आवश्यक है, और सामर्थ्यवान को हमारे इस वर्तमान के दौर में जितने प्रकार से आज अनुकूलता बन रही है, सच में मैं बोलने के लिए तो बहुत सारी बात बोल सकता हूँ, लेकिन ये सही है कि हमारी अपनी ओर आज राजस्थान के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो राजस्थान का ये गौरव, स्थापना दिवस का समय भी चल रहा है, मुझे लगता है गुड़ी पड़वा ही मनाते हैं आपके यहाँ का, तो मैं अपनी ओर से आपको इसकी बधाई भी देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और गणगौर जी की पूजा भी चल रही है, घर घर अलग अलग प्रकार से, वो जो आज ही है, मुझे रास्ते में कुछ दिखा था तो स्मरण तो कर ही रहा था, तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे समय में जब हमारे लिए कल्चर भी नए संकल्प के लिए प्रतिबद्ध करता है और आनंद में सराबोर करते, नए संकल्प के साथ नए रिकॉर्ड पे बढ़ते हैं, तो इतनी सारी बातें हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी ने बता दी।
ये बात सही है कि हमने अपने मन को इस भाव से ला करके कि एक बार कुछ काम करना तो करना और सभी सेक्टर में समान रूप से करना, इसलिए हमने बहुत सारे प्रशासनिक स्तर पे भी बदलाव भी किए। और बिजली की बात आपने कही, हमारी मध्य प्रदेश की बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है। आज के समय में जितनी सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में है, 2 रुपया 9 पैसे से हमारी बिजली हम अपने यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं, कुछ कल्पना करना कठिन है, लेकिन हर एक तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए MSME, हेवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और सभी प्रकार के क्षेत्र में जितने प्रकार से कर सकते हैं वो हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और उसी प्रकार से इंडस्ट्रियों का प्रकार भी हमारे लिए आज उतना ही महत्व का है। माइनिंग सेक्टर के अंदर में भी बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और माइनिंग सेक्टर के अलावा जैसे वर्तमान के दौर में हेल्थ के मामले में भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज में भी हमने PPP मॉडल पे 10 साल के लिए हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल आपको देंगे और 30 एकड़ जमीन 1 रुपए में देंगे। आप मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल हमारा वापरो, बाद में अपना मेडिकल कॉलेज के साथ में अपना पढ़ाने की बिल्डिंग बना लो। और पढ़ने वाले बच्चों की जो सरकारी बच्चे जिस कोटे से आएंगे, जितने बच्चे पढ़ के निकलेंगे उसमें अगर आपने फीस रखी और फीस के लिए भी बच्चों को आपको देखने जाने की जरूरत नहीं, वो सारी 70 लाख 80 लाख जो भी फीस होगी वो भी सरकार आपको बच्चों को लोन दे देगी। और ताकि डॉक्टर बनाना हमारा काम है, आपका काम मेडिकल कॉलेज चलाना है। और उस निकले वाले बच्चे से फिर 5-6 साल में उनको अपनी नौकरी दे करके उनसे हम अपनी उस हिसाब किताब को करते रहेंगे। आपका मेडिकल कॉलेज भी चलता रहेगा, हमारी हेल्थ की सुविधा भी चलती रहेगी और ये मल्टीपर्पज़ काम होता रहेगा। आज के समय में ऐसे कई सारे बदलाव हमने कर दिए। ऐसे इसी के समान आज के समय में दूध उत्पादन के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। दूध उत्पादन के लिए अब गौशालाएं भी हम बड़ी बड़ी खुलवा रहे हैं। आज के समय में कार्बन वाली खास करके आपके यहाँ इसी का चुनौती भी है ना इंडस्ट्री वालों के लिए। तो इंडस्ट्री वालों की दृष्टि से 5,000 से 50,000 तक की गौशाला आप खोलो तो गौशाला के लिए 200 एकड़ से लेके 400, 500, 700 एकड़ जमीन भी हमारी तरफ से देंगे। प्रति गौमाता 40 रुपया रोज आपको देंगे। दूध भी आप बेचो, बाद में गोबर का गौमूत्र का जो उपयोग करना वो भी आप करो और उसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट भी आप लो। और हमारी अपनी इस भावना के बलबूते पर भविष्य में गोवंशी नस्लों का सुधार भी कराएं, दूध का उत्पादन भी बढ़ाएं और डेयरी में भी मदद करें। अपने यहाँ तो दूध दही का देश है, दुनिया में भारत की पहचान कैसे है, राम और कृष्ण के समय से। और ऐसी गौशालाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं और व्यक्तिगत भी डेयरी के लिए उत्पादन बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री जी, हमने तो निर्णय किया है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सारे बच्चों को सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल में फ्री दूध पिलाने की व्यवस्था भी हमारी तरफ से होने वाली है कि बच्चे भी हष्ट पुष्ट हो, आगे बढ़े। जब कुपोषण की बात करेंगे तो काहे के अंडे मंडे की बात करो, दूध पिलाओ, आगे बढ़ाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूध का आनंद है तो दूध ही है ना। हम अंडे के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर दूध उपलब्ध हो तो दूध ही मिलना चाहिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ऐसी कई प्रकार की इंडस्ट्रियों में, खासकर होटल आप डालना चाहते हैं, 100 करोड़ के होटल डालो, 30 करोड़ की हमारी कैपिटल में उसमें सब्सिडी है। आप हॉस्पिटल डालो 100 करोड़ का, उसमें भी 30% हमारी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। एक एक करके हर क्षेत्र में जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है हम हर एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए आए। और ये पॉलिसियाँ सरलीकृत भी इसीलिए की है। 26 प्रकार की पॉलिसियाँ हमने लागू की है और उससे जाके आप तो स्पेस पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, AI पॉलिसी भी ला रहे हैं, हर सेक्टर में बढ़ने के अलावा भी। और मैं, आपने देखा होगा थोड़ा यार नया प्रकार का डिज़ाइन भी है, ये प्रतिबद्धता भी है। बार बार आना तो ठीक है। जैन साहब की दृष्टि एक तरफ और छूट गई। मैंने आपको ये स्मरण करा रहा था कि हम अपने इन कामों के लिए इतना अच्छा स्पेस देते हैं कि पहले सारे उद्योगपति बोले और मुख्यमंत्री बैठे बैठे घंटे 2 घंटे सुने। ये भी तो बड़ी बात है कि नहीं? ये भी तो कम बड़ी बात।
जब काम का धंधा का और अच्छे प्रकार से व्यवस्था का काम का सवाल हो तो घड़ी बंद करके बैठने की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दिल खोल के सुनो, सबकी बात सुनो, सबके आइडिया काम आएंगे और उसी से तो रास्ता निकलेगा। जब हमको ठोस काम करना है तो मनस्थिति भी वैसी चाहिए। और जैसे आपने कहा फॉरेस्ट बढ़ रहा है, वो आप टाइगर देख करके आए, अब टाइगर सफारी हमने अपने रीवा में बना दी और रीवा के अंदर में एयरपोर्ट भी चालू कर दिया है और एयरपोर्ट के माध्यम से हमने अपनी एविएशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की और मध्य प्रदेश सरकार में एविएशन पॉलिसी के बलबूते पर आप सिंगरौली भी प्लेन से जा सकते हो, आप रीवा भी प्लेन से जा सकते हो और भारत सरकार की जितनी एविएशन कंपनी वो सब दौड़ी मध्य प्रदेश आ रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में भी और हवाई जहाज में भी दोनों जगह हम वीजीएफ दे रहे हैं। तो 50,000 की टिकट में 35,000 भारत सरकार को हमारी तरफ से हम पर सीट मिला रहे हैं। 15 लाख की अगर इंटरनेशनल सर्विस अगर उनकी हमारे यहाँ आती है तो पर फ्लाइट 15 लाख रुपए को हम अपनी सब्सिडी उसके लिए देने को तैयार है। इसी के बलबूते पे रीवा रायपुर, रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, राज्य के अंदर भी राज्य के बाहर भी हर एक जगह इस प्रकार, जैसे आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर उड़ता उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ अपन जाते हैं ना, तो वो क्या 1-2-3 मिनट का ही चलाता है और 2-3 मिनट में 12,000 15,000 ले लेता है वो। हमारे आप उज्जैन, ओंकारेश्वर, उज्जैन, इंदौर की यात्रा करो हेलीकॉप्टर में, तो हेलीकॉप्टर में आपसे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइंग दोनों तरफ होगी। आपसे केवल 10-12,000 15,000 ही लेंगे, लेकिन 35,000 पर सीट मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है, क्योंकि हमारा कहना है कि कुल मिलाकर टूरिज्म बढ़ाना है तो यात्रियों को कम समय में आवागमन की सुविधा देने की जरूरत है। इसलिए एक तरफ नहीं, ये फॉरेस्ट में भी बढ़ा रहे हैं और यही तो कारण है कि चीता भी फलता फूलता राजस्थान में कूदता हुआ आता कि नहीं आता है, आपके यहाँ कहाँ जाता है। अब हमारे को रोके से रुक रहा है क्या, वो तो बढ़ ही रहा है किधर किधर घुस जाएगा पता ही नहीं चलता है, फिर लाते पकड़ के फिर आ जाता हूँ। तो आप अपन मनुष्यों को भी बढ़ाएं, जानवर का आनंद भी लें। और केवल एक ये नहीं, टाइगर का भी ऐसे ही सवाल है। अब आपके अभी आपने कहा टाइगर कम है तो पानी नहीं भेजा, टाइगर भी भेजा हमने गए महीने आपके यहाँ राजस्थान में। राजस्थान कोई दूसरा थोड़ी है, हमारे ही घर है। राजस्थान में भी लोग आकर के अपने वनांचल के लिए जो टूरिज्म बढ़ता है तो सब प्रकार से होता है। और चिंता मत करो, चीता भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जानवर, यही तो हमारे यहाँ भी हम सर्वाइव पहली बार करा रहे हैं। अभी मैं बीते समय गया था असम और असम में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने कहा जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100-150 साल पहले होते थे, अब खत्म हो गए। तो अभी उनसे कहा कि आप एक काम करो, हमारे यहाँ जो है हम आपको देते हैं। उन्होंने कहा हम आपके यहाँ घड़ियाल है, मगर है, वो हमारे यहाँ नहीं। हमने कहा हम आपको उठा के दे देते हैं और उनके यहाँ से जंगली भैंसे हमारे यहाँ ले आते हैं। तो जब व्यापार व्यवसाय कर सकते तो हमारे जंगल भी आबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको भी देखता हूँ, आपका विभाग इतना अच्छा, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ बहती है। एक घाटा हमारा हो रहा था कि हमने थोड़ी समझदारी जरूर करिए। हमारे यहाँ ये घड़ियाल खत्म हो रहे थे, अब घड़ियाल को पुनर्जीवित करने का संकल्प मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ। अब घड़ियाल को कोई मशीन तो है नहीं कि बना लेंगे, तो घड़ियाल के नदी के किनारे ये एक अलग बात, सबसे एशिया में शुद्ध नदी के जल की स्थिति का जल चंबल में है। और चंबल की उस विशेषता में उसमें डॉल्फिन भी है, उसमें घड़ियाल भी है और घड़ियाल के लिए वो अनुकूल माहौल है। लेकिन घड़ियाल विलुप्त तो प्राय हो रहे थे, तो घड़ियाल के लिए उनके अंडे जब देते हैं नर मादा मिल करके, तो उनके अंडे आधे मध्य प्रदेश सरकार उठाती है और उठा करके उनके बच्चे को। मिस्टर रघुवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP and MSME, मिस्टर चंद्रमौली शुक्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर MPIDC, distinguished guests and dignitaries on the dais, industry leaders, fellow members of CII, ladies and gentlemen. On behalf of the Confederation of Indian Industry, it is my privilege to extend a warm welcome to all of you to Jaipur, the Pink City of India. A city known not just for its heritage and hospitality, but also for its entrepreneurial energy and industrial dynamism. From gems and jewelry to manufacturing, from tourism to minerals, Jaipur represents the spirit of a progressive and resilient Rajasthan.
Today's session is particularly special because it brings together two neighboring states that share not just geography but ambition. Rajasthan and Madhya Pradesh have always enjoyed a healthy partnership, and if I may add, a bit of friendly competition as well, whether it is attracting investments, building infrastructure, or improving the ease of doing business. And I must say, this kind of competition is good for all of us. It pushes us to raise our game and move faster. Both Rajasthan and Madhya Pradesh are endowed with strong industrial ecosystems, abundant land availability, well-planned industrial zones, sector-specific parks, and a clear commitment to facilitating industrial growth. The Delhi-Mumbai Industrial Corridor, DMIC, is a game changer for both states. While Rajasthan has been an early beneficiary, it is equally exciting to see Madhya Pradesh leveraging this opportunity to enhance connectivity, create new industrial hubs, and integrate seamlessly with national and global markets. We are deeply grateful to Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, for being with us today and for inviting us to this important interaction with the industry. Today's session offers an excellent platform to explore opportunities across key sectors from textiles, renewable energy, food processing, logistics, pharmaceuticals, and manufacturing. More importantly, it allows us to engage in a meaningful dialogue, because investment decisions are not driven purely by policy, but by trust, clarity, and partnership. At CII, we strongly believe in collaborative growth. CII has been working closely with the government of Madhya Pradesh, and we remain committed to strengthening this engagement, translating discussions like today into actionable outcome and real investments. I am confident that this interaction will not just remain a dialogue, but will lead to concrete partnerships between the vibrant industries of Rajasthan that all of you represent and the rapidly transforming economy of Madhya Pradesh. Let me once again extend a warm welcome to the Honorable Chief Minister and all the distinguished participants. Thank you. Thank you so much, sir. And now moving forward, जैसा कि हम सभी देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह निवेश एक सशक्त और उभरता हुआ केंद्र बनता जा रहा है। अब समय है उन अनगिनत अवसरों को और करीब से समझने का जो इस राज्य को निवेशकों की पहली पसंद बना रहे हैं। आइए एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से जानते हैं मध्य प्रदेश में संभावनाओं की नई दिशा। If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk, and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET, and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 8 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging,
If natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. That was indeed an eye-opening AV. और अब हम जानते हैं कि किस तरह और इन्वेस्टमेंट के नए आयाम आप सभी के लिए खुलने वाले हैं. Ladies and gentlemen, दो साथ में जो राज्य होते हैं उनके साथ सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक ऑलरेडी आज हम देख रहे हैं. माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश सरकार के साथ में हमारे साथ यहाँ पर हैं श्री कृष्णलाल चौधरी, मंत्री महोदय जल संसाधन राजस्थान सरकार. एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी हार्दिक अभिनंदन. And now to take you all forward, I would like to invite on stage Mr. Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, for a detailed presentation on the investment landscape and sectoral opportunities in Madhya Pradesh. वंदे मातरम. नमस्ते जयपुर. अनंत संभावनाओं से भरे हुए मध्य प्रदेश और उसमें अपने अथक प्रयासों से अहर्निश उन्हें साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जी, श्री देवेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री महावीर प्रताप शर्मा जी, श्री NK जैन साहब, श्री रजनीश भंडारी जी, श्री KL जैन जी, श्री मनीष गुप्ता जी, श्री ओंकार बागरिया जी, श्रीमती अंजू सिंह जी और यहाँ पर सभागार में उपस्थित सभी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. आज के इस कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पर पधारे हैं और मैं मध्य प्रदेश की बात यहाँ पे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ. मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के नज़रिए से अगर देखें तो अपार संभावनाएं यहाँ पे हैं और सबसे पहला जो फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा कि इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के नज़रिए से ये विभाग औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन का विभाग स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उस विभाग के भारसाधक मंत्री हैं. तो किस तरह से ये चीज़ें उनकी प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे हैं ये आपके समक्ष मैं इसको रखना चाहता हूँ. मध्य प्रदेश में देखें तो स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, एकदम भारत के हृदय प्रदेश के रूप में स्थापित है और यहाँ पे देखें तो करीब 50% जो इंडिया का कंज्यूमर मार्केट है इसकी सेंट्रल लोकेशन की वजह से बहुत जैसे एक कहते हैं कि नज़दीक के रेडियस में 500 किलोमीटर का अगर एक रेडियस लें तो उसमें आ जाएगा. एबंडेंस स्किल मैन पावर है और वो भी लो कॉस्ट पे. ज़ीरो मैन डेज लॉस हैं, कभी कोई लेबर ओरिएंटेड लेबर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रही. लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं डायमंड, कॉपर, मैग्नीज में फूड के फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भारत में दूसरे स्थान पे. हॉर्टिकल्चरल और जो हमारी डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी हाई रैंकिंग वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश. पावर सरप्लस स्टेट है, 31 गीगावाट की हमारी पावर सप्लाई है और रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन करीब 1/5 है. माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उद्घोष है कि हम
2030 तक करीब 550 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ले आए, तो मध्य प्रदेश भी इसमें अपनी एक बड़ी भूमिका, राजस्थान की ही तरह से मुझे पता है कि राजस्थान ने काफ़ी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में प्रयास किया है। मध्य प्रदेश भी एक बड़ा योगदान देगा और अगले 4 से 5 वर्ष में हमारा जो एनर्जी बुके होगा उसका 50% के करीब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ले पाएंगे। एबंडेंस ऑफ वाटर सप्लाई है, मोर देन 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर हमारे पास बहुत ही कम रेट पे उपलब्ध है। रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, 8 हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर है और 1 लाख से एकड़ से ऊपर इंडस्ट्रियल लैंड हमारे पास उपलब्ध है। मध्य प्रदेश की नीतियों की चर्चा करें तो पिछले वर्ष 25 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 18 नई नीतियां समर्पित की गई थी और इन 18 नीतियों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए थी। मैं इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी की जो नीति है उसके बारे में मैं अगर बताऊं तो हम कैपिटल सब्सिडी 40% तक देते हैं और विशेष तौर पे इसमें जो फार्मूला हमारा है एमएसएमई यूनिट को सपोर्ट ज़्यादा बड़ा है और वो धीरे धीरे उसको एक करों के माध्यम से हम कम करते हैं, पर 40% तक का सपोर्ट है। अगर 83 करोड़ तक का भी अगर निवेश करते हैं तो आपको 40% का सपोर्ट मिलेगा। कैपिटल सब्सिडी के ऊपर हम एम्प्लॉयमेंट का मल्टीपल देते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है तो 1.5 तक आपको मल्टीपल मिल सकता है। एक्सपोर्ट का मल्टीपल है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं तो आपको 1.3 तक का मल्टीपल मिल सकता है। अगर हमारी नॉन इंडस्ट्रियलाइज या लेस इंडस्ट्रियलाइज एरिया में अगर आप काम करेंगे तो 1.3 तक का मल्टीपल वहाँ भी उपलब्ध है। और एफडीआई का भी मल्टीपल है, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लेके आ रहे हैं तो 1.2 तक का मल्टीपल मिल सकता है। और ये मल्टीप्लिकेशंस एक से दूसरे का सब कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन है, तो काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट हम इस हिसाब से देते हैं। 50% तक आपका जो एक्सपेंडिचर है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उसे सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट फ्रेट की सब्सिडी 50% तक है जो 5 वर्षों में 2 करोड़ तक हो सकती है और 25% जो आपका एक्सपेंडिचर है उस R&D फैसिलिटी पे उसको सपोर्ट करते हैं। स्टैंड एलोन अगर यूनिट्स हैं तो उनको 25% का सपोर्ट 25 करोड़ तक का हम दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल हाउसिंग में वाइबिलिटी गैप फंडिंग 40% तक का है। इनके अलावा 10 जो सेलेक्ट सेक्टर्स हैं उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उन पे एडिशनल इंसेंटिव्स हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कस्टमाइज पैकेज भी मेगा इंडस्ट्रीज़ को उनके मार्गदर्शन में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति है जो इस पे विचार करती है और उसमें कस्टमाइज पैकेजेस भी इंडस्ट्रीज़ को दिए जाते हैं। एक बड़ा विषय इसमें जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया लेके आ रहे हैं तो आपके 50% जो फिक्स कैपिटल एक्सपेंसेस हैं उसका सपोर्ट हम देते हैं। 100% स्टैम्प ड्यूटी का वेवर है और 50% ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपोर्ट है। तो आप अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया हो या मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के एरिया हो, कहीं भी आप जाएंगे आपको एक ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स को हम लोगों ने जहाँ पे संभावनाएं हमारे यहाँ अपार हैं, जैसा मैंने बताया कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, हार्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में तीसरे नंबर पे। तो उसकी वजह से एग्री, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग के लिए एक अलग से हमारी स्कीम है जिसके तहत 1.5 का मल्टीपल है। अगर बाकी सेक्टर्स के लिए 40 रुपये का अगर सपोर्ट हमारे पास है तो अगर आप इन सेक्टर्स में हैं तो आपको 60 रुपये का सपोर्ट है अगर आपका प्रोजेक्ट जिस तरह से काम करेंगे। मंडी फी की रीइंबर्समेंट है, पावर टैरिफ का सपोर्ट है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन का सपोर्ट है। टेक्सटाइल सेक्टर में जो हमने आपको पिछली स्लाइड जय श्री महाकाल। आज के इस बहुत अच्छे उत्साह और ऊर्जा भरे माहौल में मध्य प्रदेश के रोड शो के इस आयोजन में माननीय मंत्री श्रीमान कन्हैयालाल चौधरी साहब, जल संसाधन मंत्री, इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय देवेंद्र सिंह शेखावत जी, आपका अभिनंदन है। माननीय महाविताप शर्मा जी,
आपका भी अभिनंदन है। माननीय NK जैन साहब, अध्यक्ष MSME, माननीय रजनीश भंडारी जी, ओपनिंग बैट्समैन धोनी से कम नहीं है, अच्छे ढंग से आपने बात रखी। माननीय जैन साहब अभी आ रहे हैं वापस, लेकिन ऐसा लग रहा है जैन साहब 93 में ये कमाल कर रहे हैं, तो इनका वह उनकी कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस, विषय को समेटने के तरीके, स्मरण शक्ति परमात्मा करे शतायु हो और सहस्त्रायु हो। इस अवसर पर माननीय मनीष गुप्ता जी, आप तो सोलर पावर, खास करके माँ नर्मदा के आशीर्वाद से आपकी इंडस्ट्री पहली नहीं, ये शुरुआत है, ये भी 100 में जाके पूरी हो, ये मैं शुभकामना देता हूँ। माननीय ओंकार बागरिया जी, इस अवसर पर श्रीमती अंजू सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमौली जी और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। राजस्थान में और मध्य प्रदेश के बीच, हमारे बीच ऐसे सबसे अच्छा संबंध माना जाता रोटी बेटी का संबंध, रोटी पानी का संबंध। तो दाल बाटी तो साथ में होती थी, और पानी का और आनंद आ गया, पार्वती काली सिंह चंबल के साथ तो संबंध पक्का ही हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में राजस्थान और मध्य प्रदेश तो जुड़वा भाई की तरह है, ये परमात्मा की कृपा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, उनका ताली बजा करके स्मरण करें। नवरात्रि का समय चल रहा है, नया संवत विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर का प्रादुर्भाव हुआ है, और प्रकृति भी रंग बदलती हमारे ऋतुओं के मौसम के साथ, हमारे वर्ष के साथ। दुनिया के कई सारे देशों में कमोबेश हमारे 1 महीने के आगे पीछे, चीन से लगा ताइवान तक, वियतनाम से लेके जापान तक, भारत का तो हर एक, कभी चेटी चंड, कभी नवतेरा, कभी गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत, हमारे सब नाना प्रकार के नामों के साथ नए साल की शुरुआत भी होती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है और कई नए प्रकार के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, ये केवल मोदी जी का शासनकाल का चमत्कार हो सकता है कि लोकतंत्र के अंदर 2 राज्यों के आपस के संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने और भारत सरकार आशीर्वाद दे, ये मोदी जी के माध्यम से हो सकता है। जोरदार ताली बजा करके इस भाव को भी लाए। पहले राज्यों से राज्यों के बीच उनके संसाधनों के बंटवारे को लेकर के जिस प्रकार का अपने दक्षिण के रिकॉर्ड चल रहे हैं, कई लोगों की हत्याएं हो गई, मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या है। जब हमारी सरकार बनी, माननीय भजन लाल जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनका भी अभिनंदन कर दो, केरल से आए, मेरी बात हो गई थी, वो आ रहे हैं शाम तक, और उनने माननीय चौधरी जी को मेरे साथ इस बात के लिए रखा है कि हमारा अपना राज्य का जो परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध है, सच में हम इस भाव से ही बैठे हैं कि आप राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें, क्योंकि आखिरकार ये अलग बात है, मैं बोल सकता हूँ आपके बीच में, हमारे राजस्थान के लोग तो पूरे देश के हर जगह व्यापार व्यवसाय के झंडे गाड़ने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ क्या, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपको मौका मिले तो क्षमता योग्यता से कोई कम नहीं पड़ता, ये तो पक्की बात है। हमारे अपने ये नैसर्गिक गुण भी है, ईश्वर की मेहरबानी है, कठिनाइयों में से भी रास्ता निकालना, क्षमता, बुद्धि, योग्यता, ये बात तो सही है कि धन कमाने के लिए धन चाहिए, लेकिन धन तो बैंक में पड़ा है, वास्तव में तो मन चाहिए और दिमाग चाहिए, और वो कम नहीं है, ये पक्की बात है। वो सारी कृपा परमात्मा ने किसी राज्य को जितनी दी होगी उतनी दी होगी, लेकिन सबसे सवाया अगर ज़्यादा मौका दिया तो राजस्थान को दिया, ये पक्की बात है। इसलिए राजस्थान का आप गिनती करना चौधरी जी या जैन साहब थोड़ा कम कर देना, मैं तो गिनती भूल चुका हूँ कि कितनी बार आया हूँ, लेकिन जब भी आऊँगा परमात्मा की दया से इसी प्रकार से राजस्थान मध्य प्रदेश के संबंध बनाने के लिए आएंगे। हमारे लिए और
कई कारण से चुनौती भी के साथ एक अवसर भी है, और अवसर इस नाते से भी है कि आज के इस वैश्विक दृश्य में देखें, हमको सब दिखाई देगा। हमारे सामने कुछ घटनाओं का स्मरण करें, कुछ और पहले चले जाएं, कोविड काल जाएं, उसके पहले के जाएं, कहाँ भारत का नंबर कौन से अंक में कहाँ आता था वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से 2014 के पहले का भारत, और आज भारत किस स्थिति में खड़ा है। लेकिन भारत आज उसके अलावा भी कई प्रकार की चुनौतियों के बीच भी अवसर के रूप में भी पा रहा है। अभी हम साल 6 महीने 2 साल पहले अपने यहाँ के निवेशकों को खाड़ी की तरफ भागते देख रहे थे, और खाड़ी में खड्डा कैसे हुआ ये भी हमारे सामने दिख रहा है। अपने सामने जो माहौल बना है, मैं किसी पे टिप्पणी कर लूँगा, ये मैं जिस जगह हूँ उस जगह की दृष्टि से थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है, और ये मैं मान के चलता हूँ कि केवल समझने की आवश्यकता है, लेकिन इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि आज जीने की कला, जीने की दृष्टि, धन की उपलब्धता, धन को समाज और संसार में किस प्रकार से लेकर के उपयोग और उपभोग करने की आवश्यकता है। ये जो मनस्विता चाहिए, ये जो मानवीय गुण, लेकिन धन से उनके यहाँ पराभव हो रहा है कि उद्भव हो रहा है, इसको बोलने की और बताने की जरूरत नहीं। लेकिन धन के माध्यम से भी हिम्मत के बलबूते पर देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अनथक प्रयत्न कर रहे हैं, और मोदी जी के आशीर्वाद से अब आप बताओ 2 राज्य पीकेसी योजना केवल राजस्थान का उल्लेख कर दे, सब मिलाकर 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही, और 1 लाख करोड़ की योजना में केवल हमारा दोनों राज्य का तो 10% लगना है, और बाकी सारा पैसा भारत सरकार देगी। ये कैसा आश्चर्य हो सकता है। और भारत सरकार बगैर संकोच के मोदी जी स्वयं आकर के इस बात को अनाउंस करते हैं, और ऐसे एक नहीं सब क्षेत्रों में जीएसटी कलेक्शन से लेकर अभी आपने बिजनेस के सरलीकरण की बात की। सच में जीएसटी जब लगाया था तो हमको लगता है भारत में जीएसटी कैसे लग जाएगा, लेकिन फिर भूल गए कि मोदी जी सरकार चला रहा है, ये जो करे सब संभव है इनके शासनकाल में हो सकता है। कितने प्रकार से काम होगा। अपने देश के दुश्मनों से जाके निपटने के लिए दूसरे देश की सीमा में अंदर जाकर के, क्योंकि जब आप व्यापार व्यवसाय अनुकूलता की बात करोगे तो हमारे लिए सामर्थ्यवान होना भी उतना ही आवश्यक है, और सामर्थ्यवान को हमारे इस वर्तमान के दौर में जितने प्रकार से आज अनुकूलता बन रही है, सच में मैं बोलने के लिए तो बहुत सारी बात बोल सकता हूँ, लेकिन ये सही है कि हमारी अपनी ओर आज राजस्थान के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो राजस्थान का ये गौरव स्थापना दिवस का समय भी चल रहा है। मुझे लगता है गुड़ी पड़वा ही मनाते हैं आपके यहाँ का, तो मैं अपनी ओर से आपको इसकी बधाई भी देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और गणगौर जी की पूजा भी चल रही है, घर घर अलग अलग प्रकार से। वो जो आज ही है, मुझे रास्ते में कुछ दिखा था तो स्मरण तो कर ही रहा था, तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे समय में जब हमारे लिए कल्चर भी नए संकल्प के लिए प्रतिबद्ध करता है और आनंद में सराबोर करते, नए संकल्प के साथ नए रिकॉर्ड पे बढ़ते हैं, तो इतनी सारी बातें हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी ने बता दी है। ये बात सही है कि हमने अपने मन को इस भाव से ला करके कि एक बार कुछ काम करना तो करना, और सभी सेक्टर में समान रूप से करना। इसलिए हमने बहुत सारे प्रशासनिक स्तर पे भी बदलाव भी किए हैं। और बिजली की बात आपने कही, हमारी मध्य प्रदेश की बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है। आज के समय में जितनी सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में है, 2 रुपया 9 पैसे से हमारी बिजली हम अपने यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं, कुछ कल्पना करना कठिन है, लेकिन हर एक तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और सभी प्रकार के क्षेत्र में जितने प्रकार से कर सकते वो हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और उसी प्रकार से इंडस्ट्रियों का प्रकार भी हमारे लिए आज उतना ही महत्व का है। माइनिंग सेक्टर के अंदर में भी बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और माइनिंग सेक्टर के अलावा जैसे वर्तमान के दौर में हेल्थ के मामले में भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज में भी हमने पीपीपी मॉडल पे 10 साल के लिए हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल आपको देंगे और 30 एकड़ जमीन 1 रुपए में देंगे।
आप मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल हमारा वापरो, बाद में अपना मेडिकल कॉलेज के साथ में अपना पढ़ाने की बिल्डिंग बना लो, और पढ़ने वाले बच्चों की जो सरकारी बच्चे जिस कोटे से आएंगे, जितने बच्चे पढ़ के निकलेंगे उसमें अगर आपने फीस रखी और फीस के लिए भी बच्चों को आपको देखने जाने की ज़रूरत नहीं, वो सारी 70 लाख 80 लाख जो भी फीस होगी वो भी सरकार आपको बच्चों को लोन दे देगी। और ताकि डॉक्टर बनाना हमारा काम है, आपका काम मेडिकल कॉलेज चलाना है। और उस निकले वाले बच्चे से फिर 5-6 साल में उनको अपनी नौकरी दे करके उनसे हम अपनी उस हिसाब किताब को करते रहेंगे। आपका मेडिकल कॉलेज भी चलता रहेगा, हमारी हेल्थ की सुविधा भी चलती रहेगी, और ये मल्टीपर्पज़ काम होता रहेगा। आज के समय में ऐसे कई सारे बदलाव हमने कर दिए। ऐसे इसी के समान आज के समय में दूध उत्पादन के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। दूध उत्पादन के लिए अब गौशालाएँ भी हम बड़ी बड़ी खुलवा रहे हैं। आज के समय में कार्बन वाली खास करके आपके यहाँ इसी का चुनौती भी है ना इंडस्ट्री वालों के लिए, तो इंडस्ट्री वालों की दृष्टि से 5,000 से 50,000 तक की गौशाला आप खोलो, तो गौशाला के लिए 200 एकड़ से लेके 400, 500, 700 एकड़ जमीन भी हमारी तरफ से देंगे। प्रति गौमाता 40 रुपया रोज आपको देंगे। दूध भी आप बेचो, बाद में गोबर का गौमूत्र का जो उपयोग करना वो भी आप करो, और उसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट भी आप लो। और हमारी अपनी इस भावना के बलबूते पर भविष्य में गोवंशी नस्लों का सुधार भी कराएं, दूध का उत्पादन भी बढ़ाएं, और डेयरी में भी मदद करें। अपने यहाँ तो दूध दही का देश है, दुनिया में भारत की पहचान कैसे है, राम और कृष्ण के समय से। और ऐसी गौशालाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, और व्यक्तिगत भी डेयरी के लिए उत्पादन बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री जी, हमने तो निर्णय किया है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सारे बच्चों को सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल में फ्री दूध पिलाने की व्यवस्था भी हमारी तरफ से होने वाली है, कि बच्चे भी हष्ट पुष्ट हो, आगे बढ़े। जब कुपोषण की बात करेंगे तो काहे के अंडे मंडे की बात करो, दूध पिलाओ, आगे बढ़ाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूध का आनंद है तो दूध ही है ना। हम अंडे के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर दूध उपलब्ध हो तो दूध ही मिलना चाहिए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ऐसी कई प्रकार की इंडस्ट्रियों में, खासकर होटल आप डालना चाहते हैं, 100 करोड़ के होटल डालो, 30 करोड़ की हमारी कैपिटल में उसमें सब्सिडी है। आप हॉस्पिटल डालो 100 करोड़ का, उसमें भी 30% हमारी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। एक एक करके हर क्षेत्र में जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है हम हर एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए आए। और ये पॉलिसियाँ सरलीकृत भी इसीलिए की है, 26 प्रकार की पॉलिसियाँ हमने लागू की है, और उससे जागे अब तो स्पेस पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, AI पॉलिसी भी ला रहे हैं, हर सेक्टर में बढ़ने के अलावा भी। और मैं, आपने देखा होगा थोड़ा यार नया प्रकार का डिज़ाइन भी है, ये प्रतिबद्धता भी है। बार बार आना तो ठीक ही ठीक है। जैन साहब की दृष्टि एक तरफ और छूट गई। मैंने आपको ये स्मरण करा रहा था कि हम अपने इन कामों के लिए इतना अच्छा स्पेस देते हैं कि पहले सारे उद्योगपति बोले और मुख्यमंत्री बैठे बैठे घंटे 2 घंटे सुने। ये भी तो बड़ी बात है कि नहीं? ये भी तो कम बड़ी बात। जब काम का, धंधा का और अच्छे प्रकार से व्यवस्था का काम का सवाल हो तो घड़ी बंद करके बैठने की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिल खोल के सुनो, सबकी बात सुनो, सबके आइडिया काम आएंगे, और उसी से तो रास्ता निकलेगा। जब हमको ठोस काम करना है तो मनस्थिति भी वैसी चाहिए। और जैसे आपने कहा फॉरेस्ट बढ़ रहा है, वो आप टाइगर देख करके आए। अब टाइगर सफारी हमने अपने रीवा में बना दी, और रीवा के अंदर में एयरपोर्ट भी चालू कर दिया है। और एयरपोर्ट के माध्यम से हमने अपनी एविएशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की, और मध्य प्रदेश सरकार में एविएशन पॉलिसी के बलबूते पर आप सिंगरौली भी प्लेन से जा सकते हो, आप रीवा भी प्लेन से जा सकते हो। और भारत सरकार की जितनी एविएशन कंपनी वो सब दौड़े दौड़ी मध्य प्रदेश आ रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में भी और हवाई जहाज में भी दोनों जगह हम VZF दे रहे हैं। तो 50,000 की टिकट में 35,000 भारत सरकार को हमारी तरफ से हम पर सीट मिला रहे हैं। 15 लाख की अगर इंटरनेशनल सर्विस अगर उनकी हमारे यहाँ आती है तो पर फ्लाइट 15 लाख रुपए को हम अपनी सब्सिडी उसके लिए देने को तैयार है। इसी के बलबूते पे रीवा रायपुर, रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, राज्य के अंदर भी राज्य के बाहर भी हर एक जगह इस प्रकार, जैसे आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर उड़ता उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ अपन जाते हैं ना, तो वो क्या 1-2-3 मिनट का ही चलाता है और 2-3 मिनट में 12,000 15,000 ले लेता हो।
हाँ, हमारे यहाँ आप उज्जैन, ओंकारेश्वर, उज्जैन, इंदौर की यात्रा करो हेलीकॉप्टर में, तो हेलीकॉप्टर में आपसे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइंग दोनों तरफ होगी। आपसे केवल 10-12 हज़ार 15 हज़ार ही लेंगे, लेकिन 35,000 पर सीट मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है, क्योंकि हमारा कहना है कि कुल मिलाकर टूरिज्म बढ़ाना है तो यात्रियों को कम समय में आवागमन की सुविधा देने की जरूरत है। इसलिए एक तरफ नहीं, ये फॉरेस्ट में भी बढ़ा रहे हैं। और यही तो कारण है कि चीता भी फलता फूलता राजस्थान में कूदता हुआ आता कि नहीं आता है, आपके यहाँ कहाँ जाता है। अब हमारे को रोके से रुक रहा है क्या, वो तो बढ़ ही रहा है। किधर किधर घुस जाएगा पता ही नहीं चलता, फिर लाते पकड़ के फिर आ जाता हूँ। तो आप अपन मनुष्यों को भी बढ़ाएं, जानवर का आनंद भी लें। और केवल एक ये नहीं, टाइगर का भी ऐसे ही सवाल है। अब आपके यहाँ भी अभी आपने कहा टाइगर कम है, तो पानी नहीं भेजा, टाइगर भी भेजा हमने गए महीने आपके यहाँ राजस्थान में। राजस्थान कोई दूसरा थोड़ी है, हमारे ही घर है। राजस्थान में भी लोग आकर के अपने वनांचल के लिए जो टूरिज्म बढ़ता है तो सब प्रकार से होता है। और चिंता मत करो, चीता भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जानवर, यही तो हमारे यहाँ भी हम सर्वाइव पहली बार करा रहे हैं। अभी मैं बीते समय गया था असम, और असम में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। हमने कहा जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100-150 साल पहले होते थे, अब खत्म हो गए। तो अभी उनसे कहा कि आप एक काम करो, हमारे यहाँ जो है हम आपको देते। उन्होंने कहा हम आपके यहाँ घड़ियाल है, मगर है, वो हमारे यहाँ नहीं। हमने कहा हम आपको उठा के दे देते हैं, और उनके यहाँ से जंगली भैंसे हमारे यहाँ ले आते हैं। तो जब व्यापार व्यवसाय कर सकते तो हमारे जंगल भी आबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको भी देखता हूँ, आपका भी भाग इतना अच्छा, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ बहती है। एक घाटा हमारा हो रहा था, अभी हमने थोड़ी समझदारी जरूर करी है। हमारे यहाँ ये घड़ियाल खत्म हो रहे थे, अब घड़ियाल को पुनर्जीवित करने का संकल्प मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ। अब घड़ियाल को कोई मशीन तो है नहीं कि बना लेंगे, तो घड़ियाल के नदी के किनारे, ये एक अलग बात, सबसे एशिया में शुद्ध नदी के जल की स्थिति का जल चंबल में है। और चंबल की उस विशेषता में उसमें डॉल्फिन भी है, उसमें घड़ियाल भी है, और घड़ियाल के लिए वो अनुकूल माहौल है। लेकिन घड़ियाल विलुप्त तो प्राय हो रहे थे, तो घड़ियाल के लिए उनके अंडे जब देते हैं नर मादा मिल करके, तो उनके अंडे आधे मध्य प्रदेश सरकार उठाती है, और उठा करके उनके बच्चे को तक 2-2.5 साल के बड़ा करने की गारंटी लेती है। और हर साल ये क्रम चलता है, और हर तीसरे साल घड़ियाल को वापस हम छोड़ते हैं चंबल में। अब ये अलग बात है, वो घड़ियाल सेंचुरी राजस्थान सरकार चला रही, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। इस बार हमने कहा भी थोड़ा ध्यान रखो, ये घड़ियाल अब पालनपुर कूनों में छोड़ो, अपने को भी तो दिखाना पड़ेगा। ये खर्चा तो हम करे ही जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा इधर भी ध्यान दो। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे चीज़ों में। लेकिन ये बात सही है, आने वाले समय में जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे हमने उत्तर प्रदेश के साथ बिजली के बंटवारे को लेकर के बहुत अच्छी 2000 मेगावाट की योजना बनाई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ बिजली का, सोलर का एक इतना अच्छा मॉडल तैयार किया है कि हमारे यहाँ 6 महीने जब बिजली लगती है तब यूपी को नहीं लगती, जब यूपी को लगती तब किसानों की हमको ज़रूरत नहीं। तो हमने कहा हम और आप दोनों मिलकर के, हमारे पास लैंड मुरैना के पास आइडेंटिफाई कर ली, और हमने बिजली उत्पन्न करके 6-6 महीने परस्पर दोनों राज्य के किसानों की सुविधा के लिए देने का प्रयास किया। तो ऐसे कई मॉडल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप शाम को बैठने वाला हूँ कि हम दोनों राज्य मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य के गरीब से गरीब आदमी से लेकर सब प्रकार के लोगों की मदद करने के लिए, राज्य सरकार भी जैसे PKC योजना, ये पानी की योजना ऐसी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी और थोड़ा चुनौती भी थी, क्योंकि ये बात सही थी कि इस योजना में 5% पानी ज़्यादा राजस्थान को मिलने वाला था। अब ऐसे में हमारे IAS अधिकारियों को भी दिक्कत रहती है, अधिकारी तो परेशान होते ही है। वो कहते साहब हम अपने राज्य का नुकसान नहीं कर सकते, तो हम तो ये ऐसा लिखेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। हमने कहा ये बात सही है, इसलिए तो सरकार में हम लोग चुन के आते हैं। आप ना लिखो, हम हाँ लिख देंगे, इतना ही तो करना है, उसमें क्या बड़ी बात। भाई एक देश के अंदर 2 पड़ोसी राज्य के लोग दोनों राज्य की बेहतरी के लिए अगर निर्णय ले रहे हैं, तो 5% 7% पानी कम ज़्यादा चला गया, तुम कौन सा पानी रोक लोगे ना, हम कौन सा, वो तो जाएगा खंबात की खाड़ी, गंगा सागर तक जाएगा, यहाँ चंबल में जाएगा, चंबल से यमुना में जाएगा, यमुना से गंगा सागर में, गंगा सागर से बिल्कुल बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है, उसको कौन रोक रहा है। लेकिन अगर किसी सूखे जिले में पानी मिल जाता तो वो ज़िंदगी बदल देता है।
इसी बात की तो आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी बहुत अच्छे से इस बात को समझा है और बहुत अच्छे से बात रखते हैं। और आपके अपने सबके बीच में यही समय है, सही समय है, हम इसका उपयोग करें। आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े। इसी बात के लिए बहुत सारी अनुकूलता है, इसको बनाए रखें। आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ मंत्र साझा करना और आपको सुनना हमेशा सौभाग्य की बात होती है।